الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق اللہ العظیم. آواز بلند پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں یہ اللہ عز و جل کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ مولا کریم نے، اللہ عز و جل نے ہمیں اور آپ کو تحریک سنی دعوت اسلامی اور اس کا ماحول اور وادی نور کے سنی اجتماع میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. کچھ ماحول کے حوالے سے آپ کے درمیان گفتگو کروں گا تاکہ ہم اس نعمت کو محسوس کر سکیں. اللہ کا فضل ہم پر جو ہوا کہ ہم نیک ماحول سے وابستہ ہیں، کہ آج کے اس فساد زدہ دور میں یہ اللہ عز و جل کا ہم گنہگاروں پر کس قدر انعام ہے اور کس قدر احسان ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں ماحول انسان کو بنا بھی دیتا ہے، بگاڑ بھی دیتا ہے. ماحول انسان کی لازمی ضرورت ہے. ماحول انسان کی صرف دنیا کو ہی نہیں سنوارتا، صرف اس کے مستقبل کو ہی نہیں سنوارتا، بلکہ اس کی آخرت کو بھی روشن و تابناک کر دیتا ہے. اور برا ماحول مل جائے تو معاذ اللہ برے ماحول کی نحوست اس کی دنیا، اس کے مستقبل کو ہی نہیں تعریف کرتی، بلکہ آخرت میں بھی ذلت و رسوائی اس کے دامنگیر ہو جاتی ہے. ماحول اپنے اندر بڑی قوت رکھتا ہے. ماحول اپنے اندر گہرا اثر انسانی قلب پر نقش کرتا نظر آتا ہے. اس لیے ایک ذمہ دار کی ذمہ داری ہے، ایک باپ کی ذمہ داری ہے، ایک ماں کی ذمہ داری ہے جو اپنی اولاد کے حوالے سے حساس رہے، خود بھی اچھا ماحول اختیار کریں اور اپنے بچوں کو بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا ماحول دیتے نظر آئیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسلام میں دوستی کا رشتہ، اسلام میں دوستی کا نظام، دوستی کا قانون یہ لمحاتی نہیں ہے، یہ وقتی نہیں ہے، بلکہ انسان جس ماحول میں رہے گا، جس ماحول میں اس کی نشست و برخاست ہوگی، جس ماحول میں اس کی اٹھک بیٹھک ہوگی،
मौत के वक्त भी उसी माहौल का उसे सामना होगा, मौत के वक्त भी उसी माहौल के अफराद की मिसाली शक्लें उसके सामने नजर आएंगी। और इतना ही नहीं बल्कि इंसान जब कब्र से उठेगा तो वो अपने माहौल के अहबाब के साथ उठेगा। उसके सामने उसके अहबाब होंगे जिनसे वो मोहब्बत करता था, जिनसे वो ताल्लुक रवा रखता था, जिनसे उसके दोस्ती और भाईचारगी का गहरा रिश्ता था। अल्लाह अकबर, वो अफराद उस माहौल के लोगों की शक्लें उसके मौत के वक्त भी उसके साथ होंगी। और जब कयामत के रोज कब्र से उठेगा तो वही अफराद के साथ उठेगा, उन्हीं अफराद के साथ वो अल्लाह वजल की बारगाह में पेश किया जाएगा। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि अल्लाह अकबर माहौल कितना लाजमी हिस्सा है। इसका ताल्लुक हमारी दुनिया से भी है, इसका ताल्लुक मौत के वक्त सकरात के मराहिल से भी है, और इसका ताल्लुक कयामत के रोज कब्र से उठने से लेकर अल्लाह वजल की बारगाह में और अदालत खुदावंदी की बारगाह में हाजिर होने तक भी है। अब आप महसूस कर सकते हैं कि अल्लाह अकबर, किसी भी माहौल को इख्तियार न किया जाए, किसी भी माहौल के बहाव में न बहा जाए, नफ्स अम्मारा के बहाव में आकर किसी से भी दोस्ती का रिश्ता कायम न किया जाए। क्योंकि हम जिससे दोस्ती का रिश्ता कायम करेंगे, हम जिस माहौल को इख्तियार करेंगे, उस माहौल का ताल्लुक मौत जैसे नाजुक लम्हे से भी होगा। और कयामत के रोज उन्हीं माहौल के साथ, उन्हीं माहौल के अफराद के साथ एक इंसान अपनी कब्र से उठता नजर आएगा। तो कितना जरूरी है कि हम अपनी चंद रोजा जिंदगी में अच्छे माहौल को तरजीह दें, जहाँ इश्क रसूल पाया जाए, जहाँ अल्लाह वजल की खशियत पाई जाए। मैंने जिस आयत पाक की तिलावत की है, मेरा रब इरशाद फरमाता है, अलखिल्लाहु यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदू इल्लल मुत्तकीन। कयामत के रोज तुम्हारे अच्छे से अच्छे साथी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, अच्छे से अच्छे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। अब सवाल ये है, जब वो अच्छे से अच्छे साथी थे तो अल्लाह अकबर वो दुश्मन क्यों बन जाएंगे? तो वजह ये है, वो अच्छे हमारे नजदीक थे लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक अच्छे नहीं थे, अल्लाह वजल किताब और सुन्नत के नजदीक अच्छे नहीं थे, इसलिए उनकी दोस्ती दुश्मनी से बदल जाएगी। तो आयत का मफहूम है, रब इरशाद फरमाता है, कयामत के रोज तुम्हारे अच्छे से अच्छे साथी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, इल्लल मुत्तकीन, सिवाय परहेजगारों, सिवाय तकवा शेयारों के। यानी मुत्तकी की दोस्ती, परहेजगारों का ताल्लुक, ये कयामत के रोज काम आएगा। अच्छे दोस्तों की बुनियाद पर अल्लाह वजल फजल फरमाएगा। आप अंदाजा लगाएं, अल्लाह अल्लाह, कयामत का वो दिन जब सूरज सवा नेज़े से चमकेगा, उल्टा नहीं बल्कि सीधा चमकेगा, रेतो बालू पर नहीं तांबे की जमीन पर चमकेगा, इंसान अपने पसीने में डूबा हुआ होगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका फरमाते हैं, इंसान की खोपड़ी में उसका दिमाग ऐसे खौलेगा जैसे हांडी में दाल खौलती है, जैसे कड़ाव में तेल खौलता है, ये इंसान की कैफियत हो जाएगी। ऐसे पुराशोक माहौल में, ऐसे नफ्सी नफ्सी के दिन, अल्लाह अल्लाह, मेरा रब फरमाता है, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे काम आएगा, अच्छा साथी तुम्हारे काम आएगा। जहां जिस माहौल में तकवा पाया जाए, जिस माहौल में परहेजगारी पाई जाए, अल्लाह अल्लाह, वो माहौल कयामत के रोज काम आएगा। तो अब हम अपना मुहासबा करें, हम अपना जायजा लें कि अल्लाह अल्लाह, हम जिस सर्कल से वाबस्ता हैं, हम जिस माहौल से वाबस्ता हैं, क्या वहाँ तकवा पाया जाता है, वहाँ खशियत रब्बानी पाई जाती है, वहाँ इल्म अमल का जज्बा पाया जाता है, वहाँ इश्क रसूल की शम्मा पाई जाती है? अगर पाई जाती है तो यकीनन काबिले मुबारकबाद हैं आप, और अगर ये चीज नहीं है तो उस माहौल को छोड़ दो, क्योंकि उस माहौल से ताल्लुक
دنیا کو تو دنیا میں تو تمہیں تاریخ میں لے جا رہا ہے، موت کے وقت کہیں ایمان چھیننے میں شیطان اسی ماحول کی نوست کی بنیاد پر کامیاب نہ ہو جائے، اور قیامت کے روز بندہ اٹھے گا تو انہی لوگوں کے ساتھ اٹھے گا، انہی لوگوں کے ساتھ جن لوگوں سے دنیا میں اس کا بھائی چارہ تھا، رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ یہ میری اپنی لفظی نہیں ہے، آئیے چند روایات اور قرآنی آیات کی روشنی میں اس بات کو واضح کر دوں۔ کتاب القبائر میں علامہ ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ قول نقل فرمایا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں جب انسان کا وقت رخصت قریب آتا ہے، موت کا وقت قریب آتا ہے، تو اس کے سامنے اس کے دوست احباب کی مثالی شکلیں پیش کی جاتی ہیں۔ جب وہ ان شکلوں کو دیکھتا ہے تو حضرت مجاہد علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب وہ اپنے ماحول کے لوگوں کو دیکھتا ہے اپنے سامنے تو انہی جیسی گفتگو کرتا ہے جو اس ماحول کی گفتگو ہوتی ہے، جو اس ماحول کی بولی ہوتی ہے، انہی جیسا کلام کرتا ہے۔ علامہ ذہبی فرماتے ہیں ایک شخص کا وقت رخصت آیا، وہ شرابی تھا، بہت شراب کا عادی تھا۔ جب موت کا وقت قریب آیا اس کے گھر والے اسے کلمے کی تلقین کرنے لگے، اسے کلمہ پڑھانے لگے، لیکن اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا تھا، بلکہ معاذ اللہ وہ یہ کہتا تھا کہ تم بھی شراب پیو اور مجھے بھی شراب پلاؤ، تم بھی شراب پیو مجھے بھی شراب پلاؤ۔ اللہ، موت کے وقت وہ کلمہ تو نہیں پڑھ پا رہا لیکن یہ جملہ بول رہا ہے تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ تو علامہ ذہبی فرماتے ہیں وجہ یہ تھی اس کے سامنے اس کے دوست احباب جو شرابی تھے، جو عیش و عشرت کے گہوارے سجانے والے تھے، اس کے وہی احباب کی شکلیں اس کے سامنے پیش کر دی گئی تھی۔ انہیں دیکھ کر وہ وہی بولی بول رہا تھا، انہیں دیکھ کر وہ انہی جیسا کلام اختیار کر رہا تھا، یہاں تک کہ فرمایا کہ وہ کلمہ نہ پڑھ سکا، موت کے بستر پر یہی جملہ بولتا رہا تم بھی شراب پیو مجھے بھی شراب پلاؤ، اور اسی طرح سے وہ موت سے ہمکنار ہو۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ وجہ یہ ہے وہ جس ماحول سے وابستہ تھا ان کی شکلیں پیش کر دی گئی تھی اور ان شکلوں کو دیکھ کر اسے شراب کھانے کی بولی نظر آ رہی تھی، میں کھانے کے منحوس جملے نظر آ رہے تھے، بولنے لگا کہ تم بھی شراب پیو مجھے بھی شراب پلاؤ۔ اب آپ اندازہ لگائیں ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی جوانی میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبت کے ماحول کو اختیار کریں۔ اگر ہم زندگی میں درود مصطفیٰ کے ماحول کو ترجیح دیں گے، اگر ہم زندگی میں نعت مصطفیٰ علیہ السلام کے ماحول کو ترجیح دیں گے، اگر ہم اپنی زندگی میں عشق مصطفیٰ کے ماحول کو ترجیح دیں گے، اگر ہم اپنی زندگی میں خشیت ربانی کے ماحول کو ترجیح دیں گے، اور انشاءاللہ ہمارا وقت رخصت کبھی آئے گا اور آنا تو ہے، تو ہمارے زبان پر انشاءاللہ الرحمن وہ جملہ نہیں آئے گا جو شرابی کا جملہ تھا کہ تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ، بلکہ اچھے ماحول کی برکت سے ہم بولیں گے تو یہ بولیں گے تم بھی سورہ یاسین پڑھو ہمیں بھی پڑھاؤ، تم بھی کلمہ پڑھو ہمیں بھی پڑھاؤ، تم بھی درود پڑھو ہمیں بھی پڑھاؤ، تم بھی نعت مصطفیٰ پڑھو ہمیں بھی پڑھاؤ، کیونکہ ہم الحمدللہ محبت رسول کے ماحول سے وابستہ ہیں۔ تحریک سنی دعوت اسلامی کے ماحول سے آپ اگر وابستہ ہیں تو انشاءاللہ یہ تحریک کا ماحول جس طرح سے تمہاری دنیا کو چار چاند لگا رہا ہے تمہاری آخرت کو بھی چار چاند لگا دے گا، اور موت کے وقت یہی ماحول شیطان کو شکست دے گا اور ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ میرے امام فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور
नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो बेपना जरूरी है हम बुरे माहौल से किनारा कशी इख्तियार कर लें। ये आज का अंदाज अंदाज रात के 12 बजे हो या रात के 2 बजे हो, बल्कि 4 बजे भी मैं लौटता हूँ तो 5 नौजवानों को देखता हूँ कि कोई शतरंज खेलने में मसरूफ है, कोई कार्ड्स खेलने में मसरूफ है, फज्र के वक्त जा रहे हैं, जब भी उनकी वही बैठक आबाद है। अल्लाह अल्लाह पूरी रात गपशप में गुजर जाती है। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला का एक बड़ा प्यारा कौल अर्ज करता हूँ। तफसीर ज़ियाउल कुरान में आपका ये कौल मौजूद है और साहिब ज़ियाउल कुरान ने फरमाया, मैं चाहता हूँ कि हजरत उमर के इस कौल को नुमाया जगह आवेजा कर दिया जाए, लगा दिया जाए, तहरीर कर दिया जाए, ताकि आने जाने वाले लोगों की नजर पड़े और लोग हजरत उमर की फिक्र से इस्तेफादा करते नजर आए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं तुम में किसी को निकम्मा देखना पसंद नहीं करता। निकम्मा से मुराद फ्री देखना, फारिग देखना। तो हजरत उमर फरमाते हैं, मैं तुम में किसी को निकम्मा देखना पसंद नहीं करता। या तो रिस्क हलाल में मसरूफ रहो और इससे फारिग हो जाओ, तो उमूरे दीनिया में मसरूफ हो जाओ और उमूरे दीनिया से फारिग हो जाओ, दीनी उमूर से फारिग हो जाओ तो रिस्क हलाल में मसरूफ हो जाओ। मैं तुम में किसी को फ्री देखना पसंद नहीं करता हूँ। अल्लाह अल्लाह, आप अंदाजा लगाओ, ये लेट नाइट तक की बैठक, ये पूरा माहौल, अरे देर रात तक की बैठक की बुनियाद पर फज्र की नमाज जाए होती नजर आती है। मैं तुम्हें बताऊं, अगर कोई पूरी रात शब बेदारी करता है और उसकी बुनियाद पर नमाज फज्र नहीं जमाते फज्र भी छूटती है, तो हजरत उमर का ये दिया हुआ मिजाज है कि रात भर इबादत से अफजल है कि फज्र की नमाज बाजमात अदा की। सलमान नामी एक नौजवान फज्र के वक्त जमात में हाजिर नहीं था, और ऐसा नहीं कि उसकी आदत बन चुकी थी, ऐसा नहीं कि उनकी आदत बन चुकी थी, बल्कि ये पहली बार हुआ था। लेकिन हजरत उमर ने देखा सलमान नामी नौजवान नजर नहीं आता। आप चाश के वक्त जा रहे थे बाजार, घर में रास्ते पर उसका लबे सड़क मकान आता था। हजरत उमर ने जाकर दरवाजे पे दस्तक दी, बूढ़ी माँ निकली, पर्दे के पीछे से उसने आपके सवालात के जवाब दिए। हजरत उमर ने फरमाया, तेरा बेटा आज फज्र में जमात में नहीं पहुंचा, वक्त के अमीर हैं, वक्त के खलीफा हैं, लेकिन एक मुसलमान की जमात छूटी है। तो हजरत उमर को फिक्र है, क्या उज़्र शरई से हो गया, क्या इतना बीमार हो गया है? अगर वाकई इतना बीमार है तो इसकी अयादत करना चाहिए। आखिर किस सबब से इसकी जमात फज्र आज तर्क हुई? हजरत उमर पहुंचे, अल्लाह अकबर, बूढ़ी माँ से आपने पूछा, बूढ़ी माँ ने हिजाब के पीछे से जवाब दिया, या अमीर अल मोमिनीन, मेरा बेटा नमाज तो पढ़ा है लेकिन घर में पढ़ा है। वजह यह है, मेरा बेटा पूरी रात शब्बेदारी करता रहा, इबादत करता रहा, इसलिए जो है सुबह सादिक के बाद उस पर नींद का गलबा हो गया, उसने घर में नमाज पढ़ लिया है, जमात में हाजिर नहीं हो सका। हजरत उमर ने फरमाया, अपने बेटे सलमान से कह देना कि उमर के नजदीक पूरी रात इबादत से अफजल है कि फज्र की नमाज बाजमात अदा की जाए, फज्र की नमाज बाजमात पढ़ी जाए। पूरी रात इबादत करते हो अच्छी बात है, लेकिन फिर फज्र की नमाज जमात से पढ़ो। और अगर ऐसा है कि पूरी रात नवाफिल पढ़ेंगे तो जमात फज्र को खतरा होगा, तो हजरत उमर ने ये फिक्र दे दी कि नवाफिल की तादाद कम कर दो, रात की इबादत की का वक्त जो है मुख्तसर कर दो, आराम करो और फज्र की नमाज बाजमात अदा करो। अब आप अंदाजा लगाएं,
सलमान नामी वो नौजवान, अल्लाह अल्लाह, उसकी जमात फज्र छूटी थी। उज्र क्या था? पूरी रात उसने इबादत की थी, पूरी रात उसने कयाम किया था। आज लोग क्या करते हैं? हम जिस माहौल से वाबस्ता हैं वहाँ पूरी रात गपशप में गुजरती है और उसमें नमाज जाए होती है। हजरत उमर का ये कौल अपने सीने में महफूज कर लो, अपने कल्ब पे नक्श कर लो। हजरत उमर ने फरमा दिया, मैं तुम में किसी को निकम्मा देखना यानी फ्री देखना पसंद नहीं करता। या तो दीनी उमूर में मसरूफ रहो या दुनियावी उमूर में मसरूफ रहो। छोड़ दो बुरे माहौल को, क्योंकि माहौल का ताल्लुक इस्लाम में लम्हाती नहीं है। हजरत मुजाहिद के कौल से, अल्लामा ज़हबी की रिवायत से आपने सुन लिया कि सकरात के मराहिल में हमारे अहबाब की मिसाली शक्लें हमारे सामने होंगी। और इतना ही नहीं, इंसान कयामत के रोज उठेगा तो उन्हीं अहबाब के साथ उठेगा। मेरा रब इरशाद फरमाता है, यौमइदिन यस्दुरुन्नासु अश्फातन लियुरौ आमालहुम। आयत का मफहूम है, कयामत के रोज इंसान टोलियों की शक्ल में अपनी कब्र से उठेंगे, जमात की शक्ल में उठेंगे और रब की बारगाह में पहुंचेंगे। रब फरमाएगा, लियुरौ आमालहुम, ऐ बंदे अपना नामे अमाल दे। तो इस आयत की तफसीर में, तफसीर ज़ियाउल कुरान में मौजूद है, टोली की शक्ल में उठने से क्या मुराद, जमात की शक्ल में उठने से क्या मुराद। तो साहिब ज़ियाउल कुरान फरमाते हैं, यहाँ मुराद ये है कि नमाजी नमाजियों के साथ उठेगा, रब की बारगाह में पहुंचेगा। रब फरमाएगा, लियुरौ आमालहुम, ऐ बंदे अपना नामे अमल दे। शराबी शराबियों के साथ उठेगा और रब की बारगाह में पहुंचेगा। रब फरमाएगा, बंदे अपना नामे अमाल देख। दानी मादल्ला दानियों के साथ उठेगा और रब की अदालत में उन्हीं लोगों के साथ पहुंचेगा। रब फरमाएगा, ऐ बंदे अपना नामे अमाल देख। सौले सौलेहीन के साथ उठेंगे, शहीद शोहदा के साथ उठेंगे और उन्हीं के साथ अल्लाह की अदालत में पहुंचेंगे। और रब फरमाएगा, लियुरौ आमालहुम, ऐ बंदे अपना नामे अमल देख। बताओ मुसलमानों, जो अल्लाह वजल के इनाम याफ्ता बंदों के साथ उठेगा वो तो कामयाब हो गया, यकीनन अल्लाह वजल का उस पर फजल होगा। लेकिन बताओ मुसलमानों, जो बदकारों के साथ उठेगा, जो फिस्को फजूर वालों के साथ उठेगा, शराब पीने वाला शराबियों के साथ उठेगा, जिना करने वाला मादल्लाहि रब्बिल आलमीन दानियों के साथ उठेगा और उन्हीं के साथ अल्लाह वजल की बारगाह में पहुंचेगा। अल्लाह अल्लाह, क्या उस मौके पर वो नहीं चाहेगा कि मैं इस जमात से अलग हो जाऊं, मैं इस ग्रोह से निकल जाऊं, नेकोकारों की सफ में शामिल हो जाऊं? यकीनन चाहेगा। अरे आज भी इंसान चाहता है, अगर किसी बुराई के अड्डे पर, बुराई की चार दीवारी के करीब नजर आ जाए, वहाँ से कोई गुजर रहा है, उसका रिश्तेदार गुजर रहा है, बाप का गुजर हो रहा है, तो बेटा छुपना चाहता है कि वालिद साहब की नजर न पड़ जाए, वरना गिरफ्त की जाएगी, पुरसिश होगी, मुहासबा किया जाएगा। और औलाद में अगर कोई एहसास ज़मीर जिंदा है तो यकीनन वो बचना चाहता है। लेकिन बताओ मुसलमानों, वहाँ भी इंसान बचना चाहेगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ इंसान अब मुजरिम अपने चेहरे से पहचाना जाता है, कयामत के रोज भी पहचाना जाएगा। मेरा रब फरमाता है, युरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम, इन मुजरिम कयामत के रोज अपने चेहरे से पहचाने जाएंगे। उनका चेहरा बता देगा कि ये अल्लाह वजल का नाफरमान है, ये मासियत का इर्तिकाब करने वाला है, ये अल्लाह वजल का मादल्लाहि रब्बिल आलमीन बागी है। उसके चेहरे से हया हो जाएगा और इंसान बचना भी चाहेगा, नेकोकारों की सफ में भी शामिल हो जाए तो फरिश्ते उसे पकड़ के निकाल देंगे। मेरा मौला फरमाता है, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ बदकार
नेकोकारों की सफ से निकल जा, फरिश्ते उन्हें पकड़ के निकाल देंगे। तो बताओ मुसलमानों, अल्लाह अल्लाह सूरह जिलजाल की इस आयत से बात साबित हो गई। हम दुनिया में जिस माहौल को इख्तियार करेंगे, जिस माहौल से करीब रहेंगे, जिस माहौल से वाबस्ता रहेंगे, मौत के वक्त उठेंगे कब्रों से तो उन्हीं माहौल के साथ उठेंगे, उन्हीं नेक बंदों के साथ उठेंगे। अगर मादल्लाहि रब्बिल आलमीन हम नाच के माहौल से वाबस्ता हैं, हम गाने के माहौल से वाबस्ता हैं, हम उरियानियत के माहौल से वाबस्ता हैं, हम उठेंगे मादल्ला तो वही नचनिया लोगों के साथ उठेंगे, वही गाने वालों के साथ उठेंगे, वही उरियानियत के मादल्ला पे हयाई के माहौल वालों के साथ उठेंगे। लेकिन हम नाते मुस्तफा के माहौल से वाबस्ता हैं, हम दरूद मुस्तफा के माहौल से वाबस्ता हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता हैं। इंशाअल्लाह हम उठेंगे तो कसीदे बुर्दा के माहौल में हम उठेंगे तो नाते मुस्तफा की गूंज के माहौल में उठेंगे, मुस्तफा जाने रहमत के लाखों सलाम के नगमे के माहौल। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसलिए बुरे अहबाब को छोड़ दो, अच्छे माहौल से वाबस्ता हो जाओ। आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू समेट दूं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु तस्लीम की जिंदगी पाक में वो वक्त भी आया कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जंगलों बयाबान में जाकर तने तनहा इबादत में मसरूफ हो गए, जिक्र इलाही में मसरूफ हो गए। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने वही नाजिल फरमाई। रब ने इरशाद फरमाया, दाऊद तुमने लोगों से किनारा कशी क्यों इख्तियार कर ली? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मेरे मौला तेरे जिक्र की हलावत ने, तेरे जिक्र की मोहब्बत ने मुझे सबसे दूर कर दिया है और मैं इस वीराने में, इस जंगलों बयाबान में तने तनहा तेरे जिक्र की बरकत पाने के लिए आ पहुंचा हूँ। रब ने इरशाद फरमाया, ऐ दाऊद नहीं तुम आबादी में जाओ, तुम बस्ती में जाओ, आबादी में जाओ, लोगों से भाईचारा कायम करो, लोगों से दोस्ती करो, तुम जंगल में नहीं रहो बल्कि आबादी में जाओ। किसे फरमाया जा रहा है? वक्त के पैगंबर से रब फरमा रहा है, तुम आबादी में जाओ और लोगों से दोस्ती करो, लोगों से भाईचारा कायम करो। लेकिन खबरदार है दाऊद, किसी ऐसे को दोस्त न बनाना जो दोस्त दीन के मामले में तुम्हारा माविन और मददगार ना हो। किसी ऐसे से करीब ना होना, किसी ऐसे को करीब ना करना। ये किससे कहा गया? वक्त के पैगंबर से कहा जा रहा है कि किसी ऐसे को करीब ना करना, किसी ऐसे से मोहब्बत ना करना जो दोस्त दीन के मामले में तुम्हारा मददगार ना हो। अब आप अंदाजा लगाएं, अगर हम और आप मादल्लाहि रब्बिल आलमीन बुरे लोगों से फ्रेंडशिप का रिश्ता कायम करेंगे, आज हालत तो ये हो गई है, उरियानियत और बेहयाई का माहौल यहाँ तक पहुंचा कि एक लड़का लड़की से दोस्ती करता नजर आता है और उसे गर्लफ्रेंड का नाम दे दिया गया, लड़की लड़के से दोस्ती करती नजर आती है और उसे बॉयफ्रेंड का नाम दे दिया गया। ये सब अय्याशी का दरवाजा खोलने वाले जराए हैं। ये माहौल तुम्हें दुनिया में भी तबाह कर देगा, मौत के वक्त भी तबाह कर देगा। अगर चाहते हो कयामत के रोज हमारा हश्र अच्छे लोगों के साथ हो तो दुनिया में अच्छे माहौल को इख्तियार करो। अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हमें तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के माहौल से वफादारी के साथ जिंदगी की आखिरी सांस तक वाबस्ता रखे और इसकी माहौल की बरकतें मौत के बिस्तर पर भी अता फरमाए और कब्र से उठें तो मौला इसकी बरकतों से हमें नवाजे। बयान के दौरान कोई खता हुई हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरी खता को माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।